हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब जाने के समय स्कूल इसका स्पीड क्या था, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन द रिटर्न ट्रिप दैट विद द सेम रूट दैट देर इज लेस ट्रैफिक, कम ट्रैफिक था, ठीक है, तो उसका स्पीड थोड़ा बढ़ गया, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड हियर? जनरली व्हाट द स्टूडेंट्स थिंक दैट एवरेज स्पीड, ओके, स्पीड इज गिवन, जाने का और आने का है, दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। जनरली जो हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं, यहाँ पे वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक this is the position and this is the position, okay, this is the, suppose that Abdul's starting point, this is the starting point and this is the school, and here distance is not given. For the average speed, that what is the formula is that total distance traveled by total time taken. So first of all we will consider that total distance, means that is the distance. Let the distance be x kilometer. We can write here that is the distance of a school is x kilometer, bx kilometer, okay. And now see here, while going its speed is what, 20 kilometer per hour, and while returning its speed that is 30 kilometer per hour, okay. So first of all we will find the time taken to reach a school and returning time, okay. So here we will write time taken to reach a school, that is distance by a speed. So distance is x and a speed is what, 20 kilometer per hour, so that will come in hour. Now time taken in return trip, it will be again, that distance will be x kilometer, and a speed is what, 30 kilometer per hour, so here it will be 30 kilometer, okay. Now we will use the formula, since average speed that is equal to total distance by total time, okay. So here what is the total distance? Here total distance will be x plus x, and total time that is x by 20, and here it will be x by 30, it is in hour and this is in kilometer. Now we will find that x plus x, 2x, and here we will take the LCM, okay, it will be 60, so it will be 3x plus 2x, that is kilometer per hour, so it will be 2x by 5x, and 60 is in denominator, so it will come in numerator, that is 60 kilometer per hour. See x cancel, 5 से 12 हो गया, that is 24 kilometer per hour. So this is the solution of this question, question number 3, okay. And next question is question number 4, we will discuss. Now question number 4, a motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate for 3.0 meter per second square for 8.0 second. How far does the boat travel during this time? This is the question number 4. तो यहाँ पे जो दिया हुआ, पहले हम लोग इसको मेंशन करेंगे कि एक बोट है, लेक में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, एंड इट्स एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर what the time given, 8 second. So whatever things given, see here it is mentioned that a boat starts from rest. Any object which starts from rest, always we take initial velocity 0. So here we will take u equal to 0, okay, and acceleration is given 3 meter per second square. 3.0 means that it is written in the scientific form, ठीक है, scientific notation जो उसके हिसाब से. Time is given, that is 8 second. What we have to, how does the boat travel during this time? How far means we have to find distance, okay. So here we will write using second
equation of motion. Okay, so here that is the formula, s equal to ut plus half at square. Children, whenever we will solve such type of question when the object is in motion, always keep it in mind that you have the three formula: first equation of motion, second equation of motion, and third equation of motion, and you find what are the things given for you, and according to that you have to use. Okay, here we will use initial velocity 0, time is 8, we will write 1 by 2, acceleration is 3, and time is 8. It will be a square. So here 8 into that is 0 plus 1 by 2 into 3 into 64. It will cancel. So that is 3 to the 6, 9. That the answer is, means the boat will travel 96 meter during that time. Okay. Now we will see the question number 5. Okay, here that a driver of car traveling at 52 km per hour applies the brake, accelerates uniformly in opposite direction. The car stops in 5 seconds. मतलब 5 सेकेंड में कार जो है वो स्टॉप हो जा रहा है. अनदर ड्राइवर जो अलग कार में जा रहा है, दैट विथ मूविंग विथ 3 km per hour स्पीड, उसने ब्रेक स्लोली अप्लाई किया एंड विद इन 10 सेकेंड वो स्टॉप हो रहा है. तो एक ग्राफ पेपर पे हम लोगों को ड्रॉ करना है, स्पीड टाइम वर्सेस में ग्राफ ड्रॉ करना है. एंड आफ्टर दैट विच ऑफ द टू कार ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक वेयर अप्लाइड. तो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो स्पीड दिया हुआ है, केस दो केसेस हैं, तो हियर वी विल राइट केस 1. ठीक है, केस 1 में क्या दिया हुआ, यू, दैट यू और दैट यू सिंपली यू कैन राइट द स्पीड. ठीक है, तो यू इज 52 किलोमीटर per hour. We will multiply it by 5 by 18 meter per second, and then after what we will do, that we will solve the for the what decimal, it will cancel by 2, it will be 26, here 9, that is equal to 0.13 by 9 meter per second. It will be 9 1 9 4 0.4 meter per second. So this is the what a speed during the first case. ठीक है, then after what we'll do, here the time is given, or that is 5 second. Now we will see case 2. Here u it is given 3 km per hour. 3 km per hour we will convert into meter per second. 3 into 5 by 18, 3 6 is 18 meter per second, that is 5 by 6. So it will be 0.686 like that it will come. No, that will be 33. Okay, so it will be meter per second, and here time we can take here, and what it is given 10 second. यहाँ तक हम लोग इसको जो एज इट इज कर लेना है. देन आफ्टर व्हाट वी विल डू, जस्ट वी विल ड्रॉ द ग्राफ. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं. हियर वी विल टेक टाइम एंड दिस साइड वी विल टेक स्पीड ऑन वाई एक्सिस. स्पीड इट इज इन मीटर पर सेकेंड, एंड हियर वी विल टेक इन टर्म्स ऑफ सेकेंड. ठीक है, अब देखो यहाँ पे दैट टाइम कहाँ तक दिया हुआ है, 10 सेकेंड तक है, तो 10 डिवीजन यहाँ डिवाइड कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, एक और 11. ठीक है, अब देखो यहाँ पे दैट ऑन दिस वाई एक्सिस व्हाट इज 14.4 तक जाना है यहाँ पे, और 0.83. तो हम लोग 2 का डिवीजन लेते हैं, दैट विल बी बेटर. तो यहाँ पे 2 2 4 6 8 10, it will be 12 14 and here 16. Now children, see that on graph paper you will see that there are the 10 a small division. It means on y axis what will be its scale. y axis पे इसका स्केल क्या हो जाएगा, मतलब 1 डिवीजन का वैल्यू 1 डिवीजन और y एक्सिस पे. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0.2.
क्योंकि 2 को 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे तो ठीक है, हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से मेंशन कर दिया सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए तो इनिशियल स्पीड कितना है यहाँ पे केस 1 में 14.4, 14 तो यहाँ हो गया 4, मतलब आपको कितना स्टेप जाना, 2 डिवीजन, 14 से आगे 2 डिवीजन आपको लेना है इस ढंग से, ठीक है। और इसको 10 से मैच कर देना है इस ढंग से। चलिए हो गया, फर्स्ट ग्राफ कंप्लीट। दिस इज फॉर कार 1 या फर्स्ट कार आप लिख सकते हो यहाँ पे, फर्स्ट कार इसके लिए। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे है कि दैट 0.83 इट इज नॉट 1 होता तो इसका इस वाले पॉइंट पे होता, बट 1 से मतलब 8 देखो यहाँ पे 8 लाना है, मतलब इसमें 4 डिवीजन से आपको मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4, मान लीजिए 4 इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको कहाँ जाना है, दैट इज कितने पे जाना है, ओ एक्चुअली हियर दिस वन इज रॉन्ग, इट इज नॉट दिस वन अप टू 10, इट शुड बी अप 5, क्योंकि यहाँ पे टाइम 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको मैच करते हैं 1 अब यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करेंगे 10 सेकेंड, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 10 सेकेंड पे जाएंगे इस तरह से, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ स्केल इसको ड्रॉ कर लेना है स्टेट, यहाँ पे तो स्टेट हुआ नहीं, बट आप ग्राफ पे जब ड्रॉ करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर द ग्राफ, ये तो हो गया एक काम कंप्लीट। अब कह रहा है कि विच ऑफ द 2 कार्स ट्रैवल फार्दर आफ्टर द व्हाट ब्रेक्स वेयर अप्लाइड, फॉर दैट व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, जस्ट वी विल यूज द डिस्टेंस ट्रैवल। तो पहले केस में हम लोग क्या करते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट कार का है और ये क्या हो गया सेकेंड कार, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या होता है, दैट एरिया बिटवीन डिस्टेंस टाइम मींस स्पीड टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। तो ये हो जाएगा, देखो ये वाला एरिया पूरा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या यूज कर लेंगे, 1/2 इंटू व्हाट बेस दैट इज 5 और हाइट क्या हो जाएगा 14.4, ठीक है। वी विल सॉल्व, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7.2 7 5 30 36 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट केस। दूसरा निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड केस, ठीक है। तो यहां भी वही फॉर्मूला, हाफ बेस हो जाएगा यहां से यहां तक का, मतलब एरिया निकालना है हम लोग को, तो पूरा उतना मेंशन करने की जरूरत नहीं, 0 से 10 तक, तो बेस हो गया 10 और हाइट क्या हो जाएगा 0.83, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 5 तो इट विल कम 5 3 15 और 40 41, 2 डिजिट के बाद डेसिमल डाल देंगे, मतलब 4.15 मीटर ये हम लोगों का आ रहा डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। दिस तो इसमें कौन डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करा, दैट फर्स्ट केस, यहाँ लिख देंगे देयरफॉर फर्स्ट कार ट्रैवल्ड more than second car after the brakes were applied। बस हो गया, ठीक है। इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।